Okay, so good morning, viewers. We are in the introduction of operating system, and yesterday we have completed various topics like what is operating system, what is the need of operating system, what are the various examples of operating system. We have also gone through the various generations of operating system, and in that we have seen the um, time sequence also, that at which year which uh, kinds of operating system was running, was in the first, and what are the various. Now we have seen the first and second generation in detail. Now it is time to dig deep into the third generation and other various component. Today we will study about the today we will study about the third generation, which is having the multi-programming concept. Third generation or multi-programming concept. We have seen the multi-programming concept in process scheduling also, but we will go through once also. Then we will look into the time sharing operating system. Time sharing, what is this mechanism? Time sharing. We will look into the various examples of modern operating system. Okay, one student has joined. Ashish Kumar Roy. Okay, let me join. Okay, good morning, Ashish. Kindly inform your classmates that class Good is morning, in sir. yes, yes. Class is in schedule, and join it as soon as possible. Okay. Look into the modern operating system today. What are the various examples of that? We will also look into the various component of simple PC and what are the CPU internets working, how that is functioning, what are the various controllers we have for the function and other details. Okay, so this is the glimpse of today's topic which we will study. We are waiting for students to join. Manisha Kumari has joined. Suraj Kumar is also joining. Okay, though Kunal Kumar has joined. Okay, class will start from 8:05. Till now, if you have any kind of query related with previous session, then you can ask. Any problem if you have in the previous topic which we have studied till now, then you can ask those queries. Session will start at 8:05. Sir, in yesterday class, I can't. Uh, uh, Hello, Yes, sir. Kunal Kumar, yes, tell me.
सर इन यस्टरडे सर मैं पूरा क्लास नहीं कर पाया सर, पूरा नेट प्रॉब्लम था सर, तो हाँ, तो मैंने वीडियोस तो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया है आपके गूगल क्लासरूम में। सर तो एक मिनट सर, फिर भी इंटीग्रेटेड सर्किट बताएं। यस, ओके सर, वहाँ से करना। मैं डेली जो भी क्लास होता है वो आपके यूट्यूब पे जैसे ही अपलोड मैं करता हूँ, फ्री टाइम मिलता है मुझे, मैं अपलोड कर देता हूँ और आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ आपके गूगल क्लासरूम में। जिनका ओके भी सर। छूट जाता है वो लोग वहां से चेक कर सकते हैं। ओके सर। Okay, so till now 12 of students have joined, and still we have 2 minutes for the scheduled class to start. Pappu Prasad is also joining. So today we will study about these things. In the previous class we have gone through the second generation. We have completed that. हमने सेकेंड जनरेशन को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था, और जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल दीज थिंग्स, व्हाट आर द वेरियस जनरेशन, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, बैच कैसे काम करता है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने देख चुके थे, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड जनरेशन, and these are the various topics like मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होता है, हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वेरियस हम एग्जांपल्स देखेंगे आज की मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या एग्जांपल हैं। हम सिंपल उसके सिंपल पीसी है होता है जो हम लोग भी यूज करते हैं, तो उसके कंपोनेंट्स के, सुमन इज आल्सो जॉइनिंग, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सीपीयू इंटरनली कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या कंट्रोलर्स वगैरह लगे होते हैं, क्या सीक्वेंस होता है वर्किंग का, ये सारी डिटेल हम देखेंगे। स्मृति रूपम इज आल्सो जॉइनिंग। So till now 21 student has joined. Okay. Okay, so it is 8:05. Prem Prakash Gupta and Ankit is also joining. So it is 8:05. So let's start today's session. uh, in the meantime, if your classmates will join, then I will let them join. ओके, सो थर्ड जनरेशन आपका क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। मल्टी प्रोग्रामिंग आपका थर्ड जनरेशन में आया था। थर्ड जनरेशन कब से कब तक था स्टूडेंट, कैन एनीवन टेल मी? थर्ड जनरेशन किसी को याद है? सर इतने मालूम है 15 वर्ष का गैप था। हाँ चलिए, कुछ तो याद है कि 15 इयर्स का गैप था उन दोनों के बीच। 1965 से लेकर के 1980s का जो टाइम था, उसमें आपका टाइम शेयरिंग, ये थर्ड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहा जाता है, और उसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज किए थे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने प्रोसेस शेड्यूलिंग था उस समय भी बताया था कि व्हेन देयर विल बी हैव मोर देन वन प्रोसेस इन द रेडी क्यू, ठीक है, मोर देन वन प्रोसेस इन द रेडी क्यू प्रेजेंट, तो आपका ये क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हम इसी को करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल जॉब्स इन मेमोरी, अब मल्टीपल जॉब्स हैं, और वहीं पे ये तो होता है कि आपका ऑलवेज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेमोरी में बना हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, दे नीड टू बी प्रोटेक्शन फ्रॉम वन अनदर, एंड इवन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम आल्सो। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच जॉब एज वेल, मतलब एक जॉब को दूसरे जॉब से भी प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करना है कि ये इनका डेटा ऑल्टर वगैरह ना कर दे या इफेक्ट ना कर दे, ठीक है।
और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कहीं कोड में ऑल्टरेशन ना हो जाए। अब रिसोर्स जो होते हैं, रिसोर्स हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे, टाइम एंड हार्डवेयर। वी हैव टू रिसोर्स स्प्लिट बिटवीन जॉब्स। ओके, when we have a various hardware, like आपका हार्डवेयर क्या है यहाँ पे, सीपीयू है, मेमोरी है, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो इस टाइप के डिवाइसेस, वेरियस काइंड्स ऑफ डिवाइसेस हैं। ओके, 27 स्टूडेंट है ज्वाइन। तो इस टाइप की जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, इनको शेयर करता है ये। हम एक दूसरे जब जैसे ही नीड होता है, जॉब 1 को नीड होगा तो जॉब 1 विल टेक दीज डिवाइसेस, व्हेन जॉब 2 को रिक्वायर्ड होगा तो इस टाइप से वर्क होगा, ठीक है, स्प्लिट करते हैं। बट स्टिल अभी तक इंटरैक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट नहीं आया था कि इंटरैक्टिव है हमारा सिस्टम, कि ज्यादा रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, रिस्पॉन्स टाइम उसका कम है, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम कम है तो वो इंटरैक्टिव कहलाएगा। यूजर सबमिट जॉब, यूजर क्या करता है, अभी भी मल्टी प्रोग्रामिंग में आने के बाद भी यूजर क्या करता था, जॉब को सबमिट करता था, कंप्यूटर इसको रन करता था, कंप्यूटर रन किया और यूजर गेट रिजल्ट। ये रिजल्ट कब पा सकता था, हो सकता था रिजल्ट इसको मिनट्स में मिले, कुछ मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, कुछ घंटों में मिले या कुछ दिन के बाद मिले, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का वो जॉब है। तो यहाँ पे बस एक फीचर ये आया कि आपका जो रिसोर्स है विच इज मेमोरी, वहां पे क्या होता है, मल्टीपल जॉब्स एक साथ रिसाइड कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। यही डायग्राम में दिखाया गया है कि आपका क्या किया जा रहा है, वी हैव वेरियस जॉब, जॉब 1 है आपका, जॉब 2 है, जॉब 3 है, और ये मेमोरी है, ये पूरा का पूरा क्या है, मेमोरी है। तो इस मेमोरी में मल्टीपल जॉब्स क्या है, आपके एक साथ रह रहे हैं और इवन ऑपरेटिंग सिस्टम रह रहा है। तो बस यही एक फीचर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है कि we can have at a particular time instance we have multiple jobs in the memory. Okay, we have multiple jobs in the memory. So this is all about multi-programming. Hope I am clear to all of you. Now moving upon the time sharing. अब टाइम शेयरिंग, शेयरिंग का क्या मतलब होता है कि बांटना। शेयरिंग इज केयरिंग, आपने बचपन में सुना होगा, शेयरिंग इज केयरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम को शेयर किया जाता है अमंग अमंग जॉब्स। जो आपके वेरियस जॉब्स होते हैं उसके बीच टाइम को शेयर किया जाता है। इट इज 8, 10 एंड 31 स्टूडेंट हैज जॉइंड। ओके, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है, इसमें टाइम को शेयर किया जाता है। और तो मल्टी प्रोग्रामिंग अलाउड सेवरल जॉब्स टू बी एक्टिव एट वन टाइम। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था, रेडी क्यू में एक्टिव स्टेट में आपके हैं वेरियस जॉब्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, इनिशियली यूज्ड फॉर बैच सिस्टम। बैच सिस्टम के लिए इसको यूज किया जाता था, ठीक है। अब बैच सिस्टम के लिए यूज किया जाता था, इससे क्या होता था, हमारा जो आपका हार्डवेयर होता था जो कि उस समय बहुत कॉस्टली होता था, उसके लिए थोड़ा चीपर हो जाता था, क्योंकि मल्टीपल जॉब एक साथ रिसाइड कर सकते हैं। तो थोड़ा इंटरैक्टिव यूज होगा आपका किसके रिगार्डिंग हार्डवेयर। नाउ अब टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया, कि टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में कहा गया कि वी विल शेयर द टाइम। मतलब कि अगर अगर जैसे कि हम राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट है ना, उसको एज अ टाइम शेयरिंग मान सकते हैं कि वी हैव अ 5 मिनट टाइम। अब हम क्या करेंगे कि जॉब 1 को पहले 1 मिनट प्रोवाइड करेंगे, जॉब 2 को 2 मिनट प्रोवाइड करेंगे, जॉब 3 को भी 2 मिनट प्रोवाइड करेंगे, और नेक्स्ट जो 5 मिनट होगा उसके बाद फिर से यही ऑर्डर रिपीट करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वी डज नॉट हैव टू वेट फॉर अदर प्रोसेस टू कंप्लीट।
कि जब तक आपका जॉब 1 कंप्लीट ना हो जाए, जॉब 2 जॉब 3 को वेट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका इंटरएक्टिवनेस नहीं रहेगा सिस्टम का। तो आपके टाइम शेयरिंग जो सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या जाता है, टाइम जो होता है उसको क्या जाता है, अमंग वेरियस जॉब्स उसको शेयर कर दिया जाता है कि you will have 1 minute time, you will have 2 minute time, you will have 2 minute time, and if within this time they will able to complete, तो वो क्या हो जाएंगे, सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट जॉब को हम इस तरह से उसका टाइम प्रोवाइड करेंगे। बट दिस इज इन द रेगुलर फैशन, दिस विल इन द रेगुलर फैशन। तो अब यहाँ पे कहा गया कंप्यूटर यूज गेट मच मोर चीपर एंड इजियर। अब ये कॉन्सेप्ट मल्टी प्रोग्रामिंग एज वेल एज टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट से क्या हो गया कि कंप्यूटर लिटिल बिट चीपर हो गया, क्योंकि मल्टीपल जॉब्स एक साथ हो सकते हैं, प्रेजेंट रह सकते हैं, मल्टीपल जॉब को हम इंटरटेन भी कर सकते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सिस्टम इंक्रीज हो गया। ओके, तो यस वी गॉट एनीथिंग फ्रॉम द चैट बॉक्स? Okay, Shubham, no problem. Ashwari is trying to join from multiple systems. ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया, नो मोर प्रीस्टहुड। प्रीस्टहुड में क्या होता है, प्रीस्टहुड में ये होता है कि देयर इज अ प्रीस्ट इन अ टेम्पल, और वो क्या करता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब कि आप पहले वो पूजा करेगा, उसके बाद दूसरे लोग पूजा करेंगे, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। गिव मी 1 minute स्टूडेंट। रिक्की राज एंड शिवानी प्रिया ऐश्वर्या, दे आर लेट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्रीस्टहुड अब खत्म हो गया, क्योंकि दे डज नॉट हैव टू वेट, दे डज नॉट हैव टू वेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब टू फिनिश। सब क्या कर सकते हैं, एक साथ ही काम कर सकते हैं। आदित्य कुमार, ही इज आल्सो इन। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्विक टर्न अराउंड मीन्स क्विक फिक्सेस फॉर प्रॉब्लम। अब जेवन को अगर कोई नीड होगा या प्रॉब्लम होगा, तो वो क्या होगा, विद इन दिस 1 minute he can inform the CPU that this particular need I have, कि हमको आईओ का नीड है, तो वो क्या करेगा, इसको आईओ के पास स्विच कर देगा। J2 बोलेगा कि वी आई हैव अ नीड ऑफ पेरिफेरल डिवाइस लाइक प्रिंटर, तो वो क्या करेगा, विद इन दिस 2 मिनट वो इन्फॉर्म कर सकता है सीपीयू को आई नीड दिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी रिलेटेड विथ प्रॉब्लम होता है, रिलेटेड विथ जॉब्स, नीड, सिंपली नीड कहिए, नीड होता है रिलेटेड विथ जॉब, वो क्या कर सकता है, इंटरटेन कर सकता है, और इससे क्या होगा, मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ आपके यूज हो सकेंगे, ठीक है। वी गॉट सम रिस्पॉन्स। ओके, सुमित कुमार ने कहा है कि सर प्रीस्टहुड वंस अगेन एक्सप्लेन कीजिए। प्रीस्टहुड करने का, प्रीस्टहुड आपका इससे कॉन्सेप्ट आया है कि देयर वाज, क्या होता था, टेम्पल होता था हमारे। Give me 2 minutes, student. Give me 2 minutes.
ओके, तो प्रीस्टहुड, ओके, तो प्रीस्टहुड सुमित ने पूछा था, तो प्रीस्टहुड क्या होता था? प्रीस्टहुड सिंपल पुजारी होता है ना, पुजारी, मंदिर वगैरह में पुजारी होता है ना, तो पुजारी क्या करता है? पहले पूजा करता है, उसके बाद पप्पू इज अगेन ज्वाइनिंग, डिस्कनेक्ट हो गया होगा। तो पुजारी होता था, पुजारी पहले पूजा करेगा, उसके बाद अदर लोग को मौका मिलेगा पूजा करने का, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता था, देयर इज अ डिपेंडेंसी, कि जब तक कि पुजारी का पूजा खत्म नहीं होता है तब तक दूसरा लोग अपना वर्क नहीं कर सकता है, पूजा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही प्रीस्टहुड कहना चाहता है। और ये मैंने आपको एक टर्म भी बताया होगा, आपको अगर याद होगा, कॉन्वॉय इफेक्ट, जो मैंने आपको बताया था, कॉन्वॉय इफेक्ट, ठीक है। कॉन्वॉय इफेक्ट भी यही कहता है कि देयर इज अ नो नीड टू वेट फॉर अ हायर प्रोसेस टू कंप्लीट। तो यही यही सिचुएशन आ रहा था आपका कॉन्वॉय इफेक्ट में भी, प्रीस्टहुड भी लाइक दैट ही है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, हर एक जॉब के लिए अपना एक टाइम गिवन है कि वो सीपीयू में जाके इतने देर वर्क कर सकता है आपका, फिर उसका जैसे ही वो टाइम एक्सपायर हो जाएगा दूसरा जॉब वर्क स्टार्ट करेगा, तीसरा जॉब वर्क स्टार्ट करेगा। तो देयर इज नो डिपेंडेंसी लाइक दैट, ठीक है। Now, am I clear to all of you? What is the time sharing system? Yes, student, kindly respond. Am I clear to all of you? Time sharing and multi-programming. आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, वाई द चैट बॉक्स एटलीस्ट रिस्पॉन्स कीजिए। यस यस, क्लियर है, यस, ओके। So moving forward now, what are the various types of operating system? Modern time में, अभी current time में आपके वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो एक आपने कभी कभी नाम सुनिएगा, मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे कि बहुत सारा डेटा वगैरह का स्टोरेज का काम होता है, वहां पे इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है। तो वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है उसको MVS कहा जाता है, MVS, याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर वहां पे यूज किया जाता है जहां पे कि we need to provide various kinds of services, like आप Facebook यूज करते हैं, WhatsApp यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, we need to have a service, like हमने क्या किया, आपका कोई मैसेज आप किसी को सेंड किए तो मैसेज नीड टू गो थ्रू द सर्वर, सर्वर उसको चेक करेगा और उसको कहाँ इंटेंडेड है, किस क्या डेस्टिनेशन है, उनको वहां भेज देगा, ठीक है, उनको वहां भेज देगा। लाइक आप कोई वीडियोज या ऑडियोज अपलोड करते हैं तो इट इज मस्ट, इट नीड्स द पर्टिकुलर स्टोरेज स्पेस ऑल्सो, इसको स्टोरेज स्पेस का भी रिक्वायरमेंट है, तो वो अपलोड होगा जाकर के। तो यहाँ पे जो वर्किंग होती है, जहाँ पे क्लाइंट और सर्वर का नीड होता है, क्लाइंट नीड सम interaction with the server and some services will be provided by the server. So in that case we are using a operating system and which is called as a server operating system, and uska example है Solaris and FreeDSP. This is two example for server operating system. Okay, next आता है आपका अभिषेक जायसवाल, वेरी लेट। Okay, Abhishek, why you joined class so late? मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर जहां पे कि मल्टीपल सीपीयूज लगे होते हैं, मल्टीपल सीपीयूज लगे होते हैं, प्रोसेसर आपके मल्टीपल्स होते हैं, वहां पे इट इज अनदर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पे एक एग्जांपल है सेलुलर आयरेक्स। Okay, give me 1 minute.
Okay, students, sorry for interruption. Let's continue. मल्टी प्रोसेसर क्या होता है? जहां पे कि आपके पास वेरियस प्रोसेसर होते हैं, वेरियस सीपीयूज होते हैं. ओके, वेरियस सीपीयूज होते हैं लाइक दिस. दिस इज द सिनेरियो मल्टी प्रोसेसर. वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है उसका एक एग्जांपल है सेलुलर आयरिक्स. आपसे इसकी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि क्या होता है, बस एग्जांपल्स या टाइप्स मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम लोग यूज करते हैं. जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको कहा जाता है. इसका एक एग्जांपल है जैसे कि विंडोज, जो अभी मैं यूज कर रहा हूं. यूनिक्स, ये भी कुछ लोग यूज करते हैं, इवन मैं भी यूज करता हूं यूनिक्स फॉर द सर्टेन थिंग्स. ओके, तो आपका पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है विंडोज और यूनिक्स. नेक्स्ट आपका आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक कि आपका एटीएम मशीन इसका एक एग्जांपल है कि एटीएम वगैरह को रियल टाइम में वर्क करना पड़ता है, तो वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है उसको वीएक्स वर्क, उसका एक एग्जांपल है वीएक्स वर्क्स. नेक्स्ट आप टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया है सम ऑपरेटिंग सिस्टम कैन फिट इनटू मोर देन वन कैटेगरी. कि जैसे कि विंडोज वगैरह है, विंडोज आपका मल्टी प्रोसेसर के लिए भी वर्क कर सकता है, यूनिक्स भी मल्टी प्रोसेसर के लिए. तो ये आपका जनरल भी हो गया और आपका क्या हो गया, आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. तो इट मे पॉसिबल दैट सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स ऑन द वेरियस टाइप्स आल्सो. So this is the types of modern operating system, and we have also seen the examples related with modern operating system. Now come upon to the what are the various components of a simple PC. जो आपका सिंपल पीसी है उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या लगे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक मॉनिटर लगा होता है, आपका कीबोर्ड है, माउस है, आपका हार्ड डिस्क है. तो ये सब तो कनेक्टेड होते हैं, दीज आर अ हार्डवेयर. बट वी नीड अ कंट्रोलर ऑल्सो, जैसे कि वीडियो कंट्रोलर, हार्ड ड्राइव कंट्रोलर, यूएसबी कंट्रोलर. और अगर आपको आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट होना है तो क्या होता है, आप क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, तो वहां पे नेटवर्क कंट्रोलर का भी रिक्वायरमेंट होता है. सो दीज आर all controllers, these are all hardware which are interrelated in this fashion and embedded in our system. ठीक है. सीपीयूज भी लगे होते हैं, मेमोरीज भी लगे होते हैं. तो ये सारा चीज क्या होता है, एक सिंपल आपका पीसी के अंदर में लगा हुआ होता है. ठीक है. इट इज नॉट वेरी वाइड, आप तो फर्स्ट ईयर में भी ये चीजें जानते होंगे. ठीक है, आगे बढ़े. नाउ कम अपॉन टू द सीपीयू इंटरनल. सीपीयू कैसे इंटरनली वर्क करता है, तो यहाँ पे दो आपका वर्जन लिया गया है सीपीयू कैसे कैसे वर्क करता है. एक कहा गया पाइपलाइन सीपीयू. पाइपलाइन मैंने थोड़ा दिन पहले ही शायद आपको बताया, जब मैं इंस्ट्रक्शन वगैरह इलेबोरेट कर रहा था तो बोला था कि इंस्ट्रक्शन के वेरियस फेज होते हैं, लाइक आपका फेच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, राइट बैक इंस्ट्रक्शन. ठीक है. तो ये वेरियस फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं. तो वहीं पे एक पाइपलाइन सीपीयू लिया गया है. पाइपलाइन सीपीयू में तो क्या होगा, पहले फेच यूनिट उसमें लगा हुआ होगा, फिर डिकोड के लिए फेच कैसे करेगा, फेच इट मींस कि क्या है कहां पे है इंस्ट्रक्शन, तो वहां से इंस्ट्रक्शन को लाना मेमोरी के अंदर में, फिर डिकोड करना कि क्या करना है इस इंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है कि कॉपी करना है कि एडिशन करना है कि कंपैरिजन करना है, क्या करना है इस इंस्ट्रक्शन में. वो डिकोड यूनिट का वर्क होता है कि वो डिकोड करके बताए सिस्टम को कि क्या वर्क करना है. ये सीपीयू के अंदर में सीपीयू का वर्क हो रहा है. सीपीयू बेसिकली क्या होता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है. तो ये उस टाइप से वर्क करते हैं. नेक्स्ट आपका क्या होता है, आपका एग्जीक्यूट यूनिट होता है, जो कि आपने डिकोड करके बताया कि एडिशन करना है, तो एडिशन कैसे होगा, तो ये अब एग्जीक्यूट यूनिट के पास जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा कि ऐड करो भाई, तो 2 नंबर आया है इसको ऐड करो, a प्लस बी करो.
तो ये हो गया सीपीयू इंटरनल स्ट्रक्चर रिलेटेड विथ पाइपलाइन सीपीयू. नाउ वी हैव सुपर स्केलर सीपीयू ऑल्सो. अब सुपर स्केलर सीपीयू में क्या होता है, वी हैव मल्टीपल फेच यूनिट एंड मल्टीपल डिकोड यूनिट and we have multiple execute unit also, but in that we have a buffer. एक बफर होता है कॉमन, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें डिकोड करने के बाद हम डेटा स्टोर. बफर क्या है, बफर एक सिंपल मेमोरी है. बफर क्या है, सिंपली एक मेमोरी है जो स्टोरेज का वर्क करता है. मेमोरी का काम ही स्टोरेज का है. क्यों बफर को यूज किया जाता है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे वेरियस कंपोनेंट्स है. अब कंपोनेंट यहाँ पे क्या क्या है, आपका डिकोड यूनिट है, फेच यूनिट है, एग्जीक्यूट यूनिट है. इनका स्पीड मिसमैच भी हो सकता है. ये भी हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा टाइम लग रहा हो, एडिशन में कम टाइम लग रहा हो, कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा हो. ये आप जब कोआ पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि वेरियस ऑपरेशंस नीड्स अ वेरियस क्लॉक साइकिल. ठीक है, मे बी आपको सर इस पे एग्जांपल्स वगैरह भी करवाएंगे. तो आपका क्या होता है, इन दैट केस इट इज रिक्वायर्ड टू हैव द बफर. इट इज रिक्वायर्ड टू हैव द बफर. तो सुपर स्केलर में क्या होता है, जैसे कि आपका वेरियस फेच यूनिट है, तो वेरियस फेच यूनिट, इसने अपना फेच किया कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या काम करना है. ये अलग यूनिट है, इसने दूसरे लोकेशन से फेच किया कि क्या काम करना है. तो इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी काम होगा ना, मल्टीपल वर्क होगा. आपका मल्टीपल वर्क होगा, थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सुपर स्केलर सीपीयू. तो ये फेच यूनिट फिर वही वर्क करेगा कि आपका डिकोड यूनिट को देगा कि डिकोड कीजिए कि किस टाइप का वर्क करना है. और फिर ये डिकोड करने के बाद क्या करेगा, बफर में स्टोर कर देगा. और जैसे ही कोई एग्जीक्यूट यूनिट फ्री हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, ये प्रोवाइड कर देगा. इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट बाउंडेड कि ये जो डिकोड यूनिट है इसी यूनिट को प्रोवाइड करे. इट इज नॉट बाउंडेड. ठीक है, जैसे ही जो एग्जीक्यूट यूनिट फ्री होगा उसको ये प्रोवाइड करेगा. तो इससे क्या होगा, पैरेलल प्रोसेसिंग का वर्क होगा. पैरेलल प्रोसेसिंग होगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. ओके, सभी को समझ में आया? यस स्टूडेंट, काइंडली रिस्पॉन्ड. सभी को समझ में आया? ओके, वेरी गुड. स्मृति, रूपम, सुमित, निखिल, अभिषेक जायसवाल, all are telling that there is no problem. Okay, very good student. Now so let's move forward. चलिए, यहाँ स्टोरेज पिरामिड आप कोआ में पढ़ेंगे, मेमोरी हायरार्की. मेमोरी हायरार्की. ओके, तो स्टोरेज पिरामिड क्या कहता है, ये आपका बेसिकली एक क्या कहा जाए, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस, स्पीड ऑफ द डिवाइस, कॉस्ट पर बिट ऑफ द डिवाइस, एंड व्हाट आर द इंटर रिलेशंस बिटवीन दैट. ठीक है, तो ये स्टोरेज पिरामिड उसी के लिए बनाया गया है. तो हमारे पास जो सिस्टम में, याद रखिएगा, सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज यूनिट जो होता है वो होता है रजिस्टर. रजिस्टर सबसे फास्ट होता है. इसका एक्सेस लेटेंसी आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे कम है, 1 नैनो सेकेंड. एक्सेस लेटेंसी हमारा कम से कम होना चाहिए. एक्सेस करने में सबसे कम टाइम लगना चाहिए उसको. 1 नैनो सेकेंड में मतलब आपका 10⁻⁹ सेकेंड में ही जो डेटा इसे ट्रांसफर होना है रजिस्टर से वो काम हो जाता है. नेक्स्ट आपका जो स्टोरेज यूनिट है जिसका स्पीड इससे कम होता है बट इससे ज्यादा कैपेसिटी का होता है. आपका रजिस्टर जो होता है उसकी कैपेसिटी लेस देन 1 KB होती है. ओके, तो बहुत कम है. हम बड़े बड़े चीजों को या प्रोग्राम को या प्रोसेस को इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सिंपल वेरिएबल्स वगैरह ही स्टोर होते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह ही स्टोर होते हैं रजिस्टर में. तो अगर हम
थोड़ा स्पीड से ये कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर लें, और बट कैपेसिटी हम क्या करें, इंक्रीज करना चाहें, तो नेक्स्ट जो डिवाइस होता है उसको कैशे कहा जाता है, और इसको एस रैम भी हम कहते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कैशे, कैशे डिवाइस होता है। इसका जो एक्सेस लेटेंसी होता है, डिड वी गॉट latency, it means the time it will take. Latency means that time it is required. Get it? समझ में आया कुमार शब्जीत? लेटेंसी टाइम, लेटेंसी कम से कम होना चाहिए। यस यस, टाइम टेक टू एक्सेस। ओके, आपका फिर आपका क्या होता है, जो कैशे होता है, इसमें जैसा कि मैंने कहा कि इसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, लिटिल बिट हाइयर, हाइयर होगा, ज्यादा टाइम इसको लगेगा, ठीक है। तो बट स्टिल इट इज लेस। इसका टाइम 2 नैनोसेकंड से लेकर के 5 नैनोसेकंड तक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्टोरेज पिरामिड में, विच इज नोन एज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को डी रैम भी कहते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो मेन मेमोरी की कैपेसिटी जो होती है वो, अभी तो मेन मेमोरी की कैपेसिटी बहुत हाई है। हम जो इवन सिस्टम यूज कर रहे हैं दैट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 4 GB। एक और सिस्टम मेरे पास है दैट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 8 GB। आप लोग कुछ लोग सिस्टम यूज कर रहे होंगे, मे बी हैव कि इससे भी हायर स्टोरेज कैपेसिटी हो मेन मेमोरी का, ठीक है। तो मेन मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है यहाँ पे दर्शाया गया 256 MB, और इसकी जो एक्सेस लेटेंसी होती है, बट इट इज ग्रेटर देन, एक्सेस टाइम अब इंक्रीज हो रहा है, इट इज ग्रेटर देन आपका क्या है 50 नैनोसेकंड का, इससे 10 टाइम्स ज्यादा लग रहा है अब। बट स्टोरेज भी हमारा क्या हो रहा है, स्टोरेज 256 टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इफ वी नीड, हमें डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज, कि हम सिस्टम का एक्सेस स्पीड बढ़ाना चाहते हैं या हम सिस्टम में कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। यही दो पैरामीटर्स हैं हमारे लिए। नेक्स्ट आपका आता है मैग्नेटिक डिस्क, जिसका एक्सेस लेटेंसी होता है इन जनरल 5 मिली सेकेंड का, 5 मिली सेकेंड का, और इसकी जो कैपेसिटी होती है दैट इज 40 GB। फिर नेक्स्ट आपका आता है मैग्नेटिक टेप। इसका जो एक्सेस लेटेंसी होता है इट इज लिटिल बिट हायर, 50 सेकेंड्स की एक्सेस लेटेंसी यहाँ पे दिखाई गई है, बट स्टोरेज कैपेसिटी इसका क्या होता है, ग्रेटर देन 1 TB। ओके, बेस अब देखिए, अब ये बात है कि अगर कहें कि आपका जो कैशे होता है इसका टाइम तो बहुत कम होता है, तो क्या हम कैशे से ही पूरा का पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं क्या, या पूरा का पूरा हम जो अभी 1 TB या 10 TB का क्या मेन मेमोरी से ही पूरा का पूरा बना सकते हैं क्या? तो नहीं, एक और फैक्टर होता है विच इज नोन एज कॉस्ट पर बिट। कॉस्ट पर बिट, कॉस्ट आपका क्या होता है, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कॉस्ट क्या होता है, रिड्यूस होता है। कॉस्ट पर बिट, कॉस्ट पर बिट का सिंपल मतलब है कि एक बिट को स्टोर करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम अपना स्टोरेज पिरामिड में जाते हैं, शुभम कुमार नो सर, वाई? ओके ओके, तो
Okay, tell me how many of you right now, how many of you are present in the class? क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 38 अभी हैं. देखते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट. ओके 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 ओके. अंकित राज, शिवानी, प्रिया, आंसी. ओके, मोस्ट ऑफ यू आर प्रेजेंट. सो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो गोल होता है, ये पूरा हायरार्की का गोल क्या है कि आपका कॉस्ट जो है, चूंकि क्या होगा कि मैंने कहा कि क्या हम सिंपल एक कैशे से ही पूरा डिवाइस बना सकते हैं, बट उसका कॉस्ट क्या होगा, बहुत हाई होगा, बहुत हाई होगा. तो जनरल पर्पस मतलब जनरल यूजर कभी उसको यूज ही नहीं कर पाएगा. तो वो ऐसा सिस्टम को डेवलप करने का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है. ठीक है. तो गोल क्या होता है, सिंपल टर्म में गोल क्या होता है, रियली लार्ज मेमोरी विथ वेरी लो लेटेंसी. हमें लार्ज मेमोरी चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, और हम चाहते हैं कि कॉस्ट जो हमारा लेटेंसी हो, जो टाइम हो उसको एक्सेस करने के लिए वो भी कम हो. और क्या होता है हमारा कि कॉस्ट क्या हो, कम हो. latencies are smaller at the top of the hierarchy जैसा कि आपको दिख रहा है, and capacity are larger at the bottom of hierarchy जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. अब तो एक नया टाइप का डिस्क यूज किया जाता है, SSD, जिसका हायर आपका क्या कहा जाए, कैपेसिटी आपका इन कंपैरिजन टू मैग्नेटिक डिस्क ही होता है, बट इसका एक्सेस टाइम क्या होता है, कम लगता है. सॉलिड स्टेट डिस्क, SSD. ठीक है. अब सॉल्यूशन क्या है, मूव डेटा बिटवीन लेवल ऑफ मेमोरी. अब हम डेटा को क्या कर सकते हैं, आप डेटा को जिनका अभी नीड है, जिनका करंट नीड है, उनको आप क्या करें, जहां टाइम कम लग रहा है वहां भेज दीजिए कि उनको जल्दी से प्रोसेस करके टाइम कम लगे. और जिनका नीड नहीं है उसको आप क्या कीजिए, उसको आप लोअर लेवल ऑफ मेमोरी में रखिए. तो क्या होगा, इससे कम खर्च में ही आप ज्यादा इफिशिएंसी पा सकेंगे, ज्यादा स्टोरेज पा सकेंगे. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मेमोरी. दिस इज द एडवांटेज ऑफ मेमोरी हायरार्की. ओके, सभी को समझ में आया? Okay, very good. Very good. If you have any kind of doubt, you can ask. Okay, now student, it is a time for attendance. I am giving you link for today's attendance. Kindly fill it up. अभिषेक जायसवाल का कहना है कि नो डाउट. ओके. रामकृष्णा, यस सर, समझ में आ गया. वेरी गुड. इट मीन समझ में आ गया सबको. पप्पू प्रसाद, निखिल, प्रेम, वेरी गुड वेरी गुड. मानसी कुमारी, वेरी गुड. ओके, मतलब सबको समझ में आ गया व्हाट इज मेमोरी हायरार्की एंड व्हाट इज दिस ऑल कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद दैट. जल्दी से आप लोग रिस्पॉन्ड कर दीजिए ताकि जो टाइम है अभी भी उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकें. स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्ड. Okay, we got some responses in the chat box. No doubt. Sumit, no doubt. Subham, done. Okay, तो अटेंडेंस कुछ लोगों ने दे दिया है. So
स्टार्ट करते हैं। Kumar Sarvjit is telling me, sir, previous slide solution point, can you repeat? In which storage pyramid or CPU internal? कुमार शर्वजीत, स्टोरेज पिरामिड और सीपीयू इंटरनल किसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट? ओके, 34 स्टूडेंट ने अभी तक रिस्पॉन्ड कर दिया है एंड राइट नाउ 38 स्टूडेंट आर हियर। सीपीयू इंटरनल, कुणाल कुमार आप अपना ऑडियो बंद कर लें। कुमार, सीपीयू इंटरनल्स में जैसा कि कुमार शब्द मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में बताया था कि इंस्ट्रक्शन जो होता है, इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। वी हैव अ वेरियस स्टेप लाइक फेच करते हैं हम इंस्ट्रक्शन को, डिकोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो पाइपलाइन सीपीयू का ये फंक्शन होता है। पाइपलाइन में ये बेसिकली किया जाता है कि इंस्ट्रक्शन को वेरियस पार्ट्स में ब्रेक कर लिया जाता है और उन पे प्रोसेसिंग की जाती है। तो फेच यूनिट होता है फेच करने के लिए, डिकोड यूनिट होता है डिकोड करने के लिए, एग्जीक्यूट यूनिट। मैं यही नहीं कर रहा हूँ कि यही तीन पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं, वी हैव अदर पार्ट ऑल्सो। ठीक है, बट यहाँ पे 3 पार्ट में दिखाए गए। बेसिकली ये 3 तो मेन फंक्शनल यूनिट होते ही होते हैं। तो फेच यूनिट में इंस्ट्रक्शन फेच करने का कि आपका किस पर्टिकुलर लोकेशन में वो इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी में लाइए। अब मेन मेमोरी में आने के बाद वो इंस्ट्रक्शन किस टाइप का काम करेगा, एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि कितना साइकिल ये लेगा। ठीक है, कितना साइकिल लेगा, तो ये इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट का काम होता है कि वो डिकोड कर लिया। नेक्स्ट आपका क्या काम होता है, आपका नेक्स्ट जो यूनिट होता है दैट इज एग्जीक्यूट यूनिट, कि वो अब एडिशन तो पता चल गया कि एडिशन हमको करना है, डिकोड में पता चल गया कि एडिशन करना है, बट एडिशन बेसिकली ए प्लस बी का क्या रिजल्ट होगा या क्या उस पे वर्क होगा, एडिशन कैसे होगा, ये एग्जीक्यूट यूनिट करता है। तो ये तो हो गया पाइपलाइन का काम। अब सुपर स्केलर सीपीयू में क्या होता है कि वी हैव मल्टीपल फेच एंड डिकोड यूनिट एंड मल्टीपल एग्जीक्यूट यूनिट। तो ये फेच यूनिट जो होते हैं वो फेच करते रहते हैं इन अ पैरेलल प्रोसेसिंग। फेच किए, उसके बाद डिकोड यूनिट के पास भेज दिए, अपना डिकोड यूनिट के पास भेजे और डिकोड यूनिट इसको डिकोड किया, और हमारा इसमें एक एलिमेंट एडेड होता है विच इज नोन एज बफर। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ना कि एडिशन में एक क्लॉक साइकिल लग रहा हो, सब्ट्रैक्शन में भी एक लग रहा हो, कंपैरिजन करने में आपका 4 क्लॉक साइकिल लग रहा हो, मल्टीप्लिकेशन करने में 8 क्लॉक साइकिल लग रहा हो। तो इससे क्या हो जाएगा, पाइपलाइन होने के बाद भी क्या हो जाएगा, स्पीड अप उतना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको फिर मल्टीपल सुपर स्केलर जब कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मल्टीपल फेच डिकोड एग्जीक्यूट यूनिट होता है। अब फेच यूनिट का काम एज इट इज होता है जो पहले हमने देखा, डिकोड यूनिट का भी वही काम होता है। एक नया एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया जाता है विच इज नोन एज बफर। बफर क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है कि हमारा क्या इंस्ट्रक्शन है जिसको हम एग्जीक्यूट होने के लिए भेजे। जैसे ही कोई एग्जीक्यूट यूनिट खाली हो जाता है तो बफर क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट यूनिट के पास भेज देता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सीपीयू इंटरनल्स। गेट इट? ओके, वेरी गुड कुमार शब्जीत। चलिए, तो स्टोरेज पिरामिड हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है वो डिस्क ड्राइव स्ट्रक्चर। जो आपका डिस्क होता है ना, डिस्क, हार्ड डिस्क, या आपने सीडी वगैरह देखा होगा, सीडी, डीवीडी, ठीक है, ब्लू रे वगैरह। तो उन सब में क्या होता है, उनमें कैसे ये वर्किंग होता है, कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, उसको हम देखते हैं। तो आपका बेसिकली जो आपका यहाँ पे वेरियस नंबर ऑफ डिस्क आपका
दिखाया गया है। इसी टाइप से डिस्क क्या होते हैं, एक स्पिंडल, ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ना बार, एक स्पिंडल पे मल्टीपल डिस्क क्या होते हैं आपके एलोकेटेड होते हैं। अब एक आपका क्या होता है, एक आपका एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर ये आपका आर्म होता है जो कि आपका रोटेट करता है। अब ये रोटेट करता रहता है तो आपका क्या होगा, इसमें मल्टीपल हेड्स लगे होते हैं टू रीड फ्रॉम द डिस्क, ताकि मल्टीपल आपके डिस्क एक साथ रीड हो सके। अब जो आपका डिस्क भी होता है, डिस्क इज ऑल्सो इन मूविंग, ये भी घूम रहा होता है। आप टच करेंगे अपने सीपीयू को तो पता चलेगा देयर इज अ रोटेशन परफॉर्म्ड इन द हार्ड डिस्क ऑल्सो। ओके, यू कैन गेट द फील ऑल्सो। तो अब क्या होता है इसको, ये तो ये हो गया अबाउट द स्पिंडल, अबाउट द एक्चुएटर, अबाउट द हेड। अब जो डिस्क होता है, डिस्क को वेरियस पार्ट्स में, वेरियस टेक्निकल टर्म्स में डिवाइड किया गया है। अब क्या है, डिस्क में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, कोसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में इसको बनाया जाता है। और इसको कोसेंट्रिक्स जो सर्कल्स होते हैं इसको ट्रैक कहा जाता है। टेक्निकल टर्म में स्टूडेंट याद रखिएगा, कोसेंट्रिक जो सर्कल होते हैं आपके डिस्क में उनको ट्रैक कहा जाता है। अब इस ट्रैक को मल्टीपल सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है फॉर द स्टोरेज पर्पस। डेटा को हम यहाँ पे स्टोर करना है तो इसको मल्टीपल सेक्टर्स में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया सेक्टर। अब जो ये मल्टीपल आपके डिस्क जो हैं वो लगे हुए हैं, इनको प्लैटर कहा जाता है, प्लेट, प्लैटर। अब क्या है, अब किसी भी डिस्क के पास दो सरफेस होता है, एक टॉप सरफेस है और एक बॉटम सरफेस होता है, तो दिस इज द सरफेस। और मल्टीपल जो आपके प्लैटर हैं, अब इस प्लैटर में जो आपका सिंपली it is a combination of various disk, और इन वेरियस डिस्क के एक प्लैटर में वेरियस जो प्लैटर्स लगे होते हैं उनमें जो सेक्टर आपके आते हैं उनको सिलेंडर कहा जाता है। याद रखिएगा ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको सिलेंडर्स कहे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क ड्राइव स्ट्रक्चर। ओके, नाउ देखते हैं थोड़ा यहाँ पे डिटेल। डेटा स्टोर्ड ऑन सरफेस, डेटा को सरफेस पे स्टोर किया जाता है। अप टू 2 सरफेस पर प्लैटर, एक जो प्लैटर होता है उसके पास 2 सरफेस होता है, एक टॉप एक बॉटम। 1 और मोर प्लैटर पर डिस्क। ओके, तो जो प्लैटर होते हैं उसमें एक या एक से ज्यादा, कभी कभी एक ही डिस्क होता है, कभी एक से ज्यादा भी डिस्क हो सकते हैं। तो एक या एक से ज्यादा आपके प्लैटर हो सकते हैं, ठीक है। एक प्लैटर पे एक या एक से ज्यादा डिस्क हो सकते हैं। नाउ मूव अपॉन टू द डेटा इन कोसेंट्रिक ट्रैक्स। जो ट्रैक होता है आपका, ये जो ट्रैक है आपका, जो सर्कल ये पूरा बना हुआ है, सर्कल जो बना हुआ है इसको कोसेंट्रिक ट्रैक कहा जाता है। अब इस ट्रैक को ट्रैक्स ब्रोकन इनटू सेक्टर, अब ट्रैक को वेरियस पार्ट्स में ब्रेक कर लिया जाता है और इसको क्या कहलाता है, ये सेक्टर कहलाता है। अब इन जनरल सेक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो 256 बाइट से लेकर के 1 किलो बाइट तक होती है पर सेक्टर। अब जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर करस्पॉन्डिंग ट्रैक ऑन ऑल सरफेस, ट्रैक नंबर 0, ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3। तो ट्रैक नंबर 0 ये क्या हो गया, सारे जो डिस्क हैं, सारे डिस्क का ट्रैक नंबर 0 एक साथ आएगा तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज सिलेंडर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डेटा रीड एंड रिटन बाय हेड्स।
डेटा को रीड करना हो या राइट करना हो, तो ये काम क्या किससे होता है? हेड के थ्रू किया जाता है कि आप उस पोजीशन पे पहुंचिए, उस लोकेशन पे पहुंचिए और वहां पे क्या करेंगे? हम डेटा को स्टोर करेंगे। एक्चुएटर मूव्स हेड। एक्चुएटर जो होता है वो क्या करता है? हेड को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, मूवमेंट प्रोवाइड करता है कि वो पर्टिकुलर सेक्टर में जा सके, क्योंकि ये क्या है? आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, सर्कल में मूव करता है। और जो हेड होता है, हेड मूव इन यूनिसन। इट मीन्स आपका हेड जो होता है वो वहीं पे फिक्स रहता है एक आर्म की तरह, और वो हेड क्या होता है? उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो आपका ट्रैक मूव करेगा तो वो सेक्टर उसके नीचे चला जाएगा। अब जो एक्चुएटर होता है ना, एक्चुएटर आपका एक्चुएटर आपका क्या करता है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता है। तो आपका विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन मूव टू द पर्टिकुलर ट्रैक। दिस इज ऑल अबाउट डिस्क ड्राइव स्ट्रक्चर। इन सब चीजों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें डिस्क शेड्यूलिंग भी पढ़ना है, डिस्क को कैसे शेड्यूल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम मेमोरी की तरफ। तो मेमोरी क्या होता है? मेमोरी आपका स्टोरेज का वर्क करता है। और जो मेमोरी होता है, यहाँ मेन मेमोरी आपको दिखाया गया, तो मेमोरी में आपका क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। नाउ मेमोरी के लिए क्या होता है? वी हैव वेरियस एड्रेस। और जो ये एड्रेस होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा डिजिटल में, वी हैव अ हेक्साडेसिमल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आपने पढ़ा होगा बाइनरी, आपने पढ़ा होगा ऑक्टल, और एक होता है हेक्साडेसिमल। बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नाउ अब ये जो मेमोरी होता है, इसमें ओएस तो स्टोर होता ही होता है। तो ओएस क्या हो गया? फिक्स्ड लोकेशन पे स्टोर हो गया, क्योंकि ओएस में तो अब कोई चेंज उतना आना है नहीं, कोई चेंज आएगा नहीं, तो वो क्या हो गया? एक फिक्स्ड लोकेशन पे स्टोर हो गया। अब नाउ जो आपके प्रोग्राम होंगे और उससे रिलेटेड जो डेटा होंगे वो क्या होंगे? वो आपके वेरियस लोकेशंस में स्टोर होंगे। तो जो आपका स्टार्टिंग लोकेशन होगा वो कहलाता है आपका बेस। और हम स्टार्टिंग लोकेशन में एक वैल्यू होती है लिमिट, मतलब कि स्टार्टिंग लोकेशन हो गया आपका 146, ये हो गया आपका स्टार्टिंग लोकेशन, और आपका जो लिमिट है वो है 52। तो क्या करेंगे? लिमिट को अगर हम ऐड कर देंगे स्टार्टिंग लोकेशन में, तो जो आपका एंड एड्रेस होगा यू कैन गेट दैट। इससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एंड एड्रेस क्या हो जाएगा? सिंपली 891 198 विल बी द एंड एड्रेस। तो आपका जो प्रोग्राम एंड डेटा होता है उसमें दो वैल्यू होती है फॉर द स्टोरेज पर्पस। वन इज बेस स्टार्टिंग लोकेशन एंड अनदर इज लिमिट, लाइक दिस। आप लिमिट और बेस को ऐड कर देंगे तो आपको एंड एड्रेस मिल जाएगा। Okay, so now it is a time to end the session. Yes, student, if you have any kind of query or problem, then you can tell me. Thank you, Papu. Very good. No doubt, Subham. तो चलिए, thank you. Sumit has also responded, no doubt. Abhishek Jaiswal, very good student. Manisha, thank you, sir. Okay, very good, student. So let's end today's session right here, right now. Thank you, student. Have a nice day.